Namaskar. Welcome to each one of you in this workshop webinar on the topic, very important topic, financial reporting of non-corporate entity. So, Kasa, welcome to each one of you once again in this Monday Manthan. We have with us our eminent expert, my good friend CA Gyan Prakash Sharma ji. Welcome to you, Gyan bhai. Namaste, And namaste to all. namaste. And as a panelist, Akash Gupta ji and Ankur Rastogi ji, Asha Sharma ji also there. So all will discuss the issues, the relevant topic कि हम किस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर कर रहे हैं क्लाइंट या उसकी जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या पॉइंट्स ऐसे हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं यदि क्लाइंट बना रहा है फाइनेंशियल्स को एज पर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टेक्निकल गाइडेंस या नहीं बना रहा है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि हम किस तरह नॉन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एंटिटीज की रिपोर्टिंग को प्रॉपरली कर पाए, प्रॉपरली एड्रेस कर पाए और रिपोर्ट कर पाए। Before coming on the topic, I would like to brief about Gyan Prakash Bhai. Mr. Gyan is a rank holder in CA exams and placed at All India 10th rank and 27th rank respectively in CA intern, CA final. He has done articleship from the Deloitte Haskin and DHS, and before joining Sankalp team, he has served DHS Big Four at a various positions for almost a decade. He is continuous contributor to the profession and served member of various committee of the Regional Council and Center Council of ICI. He has he has to credit for his contribution as a special invitee members internal audit standard board IASB of ICI. So and also he has delivered many lectures at the various forum at different level, branch, region, and other forums. So definitely we are going to learn a good knowledge about the subject. Now I request Gyan Bhai to take up the technical session and our panelist Gyan ji, Asha ji, Akash ji, all will ask queries along with me if there is required. Over to you, Gyan Bhai. Thank you Sumit ji, and thanks to all my professional colleagues कि जो आज अपना इम्पोर्टेंट टाइम यहाँ देकर मतलब साथ में हम सब एक इंटरेक्टिव वेबिनार के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है. एंड एज वी नो दैट टुडे राइट नाउ दिस इज समहाउ a relevant topic if we talk about regarding financial statement. So वैसे तो लास्ट 2 ईयर से इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशंस और कुछ ना कुछ टेक्निकल गाइड और कुछ अपडेट्स वगैरह चल ही रहे थे आईसीआई की तरफ से. बट नाउ वी नो दैट गाइडेंस नोट रिगार्डिंग applicability or regarding the standard format of non-corporate financial entities, so that is applicable, or we can say like that is mandatorily, or we should follow that that format for non-corporate entity financial statements as per guidance note. So that is applicable from current financial year like 24-25. So ये अभी इस टाइम ये टॉपिक ऐसा है. वैसे हम देखते हैं कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जनरली वी आर गोइंग टू साइन इन जून एंड जुलाई. वी नो that is mostly happens in many cases, but in April or May this is also irrelevant. Why? Because this is the time to close the books of account of non-corporate entities. Generally they are closing books in April or in a May. So if there are any requirement of regarding any disclosure or any recognition measurement principles or any disclosure part or any some like documentary evidence, like we need to prepare some policies and some any disclosure requirement, so that we can do in advanced planning, so that there is no such hurdle we will face during the finalization of accounts. So that's why this topic is relevant right now, so that we have sufficient time to make a disclosure and presentation and all thing in financials well in manner. Being professional, being chartered accountant, this is a much important, because as we know, like our crucial part, our important part, that is our audit report. So whenever we are issuing audit report, then we are mentioning that some comments on financial statements, that financial statements are true and fair view. So whatever comment we are giving in our audit report,
so that we are bind on this regarding those comments. So we need to ensure whether we are making any comments, so what is the basis of comment, or whether we are the accounting standards have been followed by not. So आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या है, उसमें क्या क्या कवरेज होते हैं, and then financial statements. So what should be the coverage in financial statements? What are the component of financials? Because in many cases we have seen like tax audit की अगर बात करते हैं तो in some cases tax audit में जब financials अपलोड करने होते हैं तो 2 पेजेज अपलोड कर दिए जाते हैं, बैलेंस शीट एंड P&L, दैट्स इट, छोटे एंटिटी के केस में. बट दैट इज नॉट राइट वे, बिकॉज नाउ ओवर द पीरियड डे बाई डे जो कंप्लायंसेस बढ़ रही है, डिपार्टमेंट्स की रेगुलेटरी इंक्वायरीज आती है, आईसीआई के पास भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स आती है कि भाई प्रोफेशनली ड्यू केयर नहीं हुई है. तो अकॉर्डिंगली हमें कुछ भी इशू करने से पहले वी नीड टू एंश्योर दैट वेदर ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अप्लीकेबल डिस्क्लोजर्स और रेलेवेंट like presentations and fair view presentation framework have been complied in financial statement. So आज का अपना टॉपिक रहेगा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कवरेज क्या क्या होता है, देन फाइनेंशियल्स बनाते टाइम जब मैनेजमेंट बना रहा होता है तो व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स दे नीड टू टेक केयर. और बीइंग ऑडिटर जब हम ऑडिट कर रहे हैं या वी आर मेकिंग एन कमेंट ऑन लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, we are giving our opinion, so what information we need to check whether these are financial statements are true and fair view. अब इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन सी अप्लीकेबल है, उनमें क्या डिस्क्लोजर्स है, वो मैंडेटरी है नहीं है, या जो गाइडेंस नोट की मैंडेटरी है नहीं है, उसका फॉर्मेट्स क्या होगा फाइनेंशियल्स का, वो सारा डिस्कस करेंगे. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद लाइक सम ब्रीफ पीपीटी एंड लाइक दिस. सुमित सर विजिबल है? यस, परफेक्ट ज्ञान भाई. ओके ओके. So first of all, we'll discuss like financial statement format. As we know, there are two types of organizations. We know that corporate entities and non-corporate entities. Corporate, mostly we very well known because there are specific formats and guidelines as per Schedule 3 and Companies Act. So that's why that is already inbuilt. Like in management, we also knows about what are the formats, what are the disclosures we need to give. And being auditor, we also know very well. That is no issue. And there are guidelines regarding like a Companies Act and Schedule 3, which governs the principles of financial statement of corporate entity. And there are 3 divisions, 1, 2, 3. One is relevant for the accounting, the entities which are following accounting standards, and division 2 for non-Ind AS, and division 3 for NBFC and bank, NBFC companies and all. So that is not our concern. Now we'll move to the non-corporate entities. So as per ICI guidance note in August 2023, there are some formats have been prescribed for non-corporate entities, and that is applicable for financial year 24-25. Now the question will come, non-corporate entities who will cover? So first of all, we need to take care. Non-corporate entity means all other than company, but in here in that case, LLP will also be covered here, because that is we can say the corporate entity, but we are talking about like financial statements that is not covered by Schedule 3 and not covered by Companies Act. That's why LLP also will be covered here. So in non-corporate entity, if we talk about, then sole proprietorship firm and HUF and partnership firm, it may be registered or unregistered, like AOP and RWA, mostly जैसे some of resident welfare association we have in Gurgaon or in Delhi NCR and Bombay. There are much more organizations of like this. And society registered under a specific like act, and any trust, statutory corporations, bodies, and any form of organization. So all these other than companies are covered here. This is the general meaning. So that is not significant part or significant discussion matter here, because whenever we are going to do an audit or like being a consultant, we are going to prepare a financial statement, then we all know very well that generally which type of financials, whether the corporate entity. The main question and like main topic will be arise, what would be the coverage in financials and which type of information we need to take care.
while preparing financial statements or while doing an audit of financial statements. I'm making a both comment like preparing, because in some cases we are as a consultant and in some cases we are an auditor. So don't take it otherwise like a independence issue. That is a different part. Financial statements, there is a like major thoughts in, or we can say like in small organizations, there is a balance sheet and P&L. So balance sheet, P&L, and there are some notes to account. We can say like other fixed asset note or other expenditure note and revenue and note. So generally these type of information we already give, and their presentation format they may be different, because some person provide the financials in T format and some provide the like in a company act like a corporate entity like format. So that is a different view. But to make a harmony, they like to make a standard format or to provide a uniformity in all across. So that's why ICI issued a guidance note to share a format to us. So we'll discuss like financial statement, which type of information we need to take care. That's why we can say like these financial statements are complete. So balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, if that is applicable, because there is some like accounting standard guidelines which say in some entities there are like accounting standard 3 are applicable, but in many cases that is not applicable. So that's why it depends on our entities whether applicable or not. And notes to account and policies, that this is the part, notes to accounts and policies, we can say like generally we ignore, because in many cases in small organizations or non-corporate organizations we generally avoid or like we ignore this segment. There are no such policies generally we disclose in financials, and there are notes to accounts which are disclosures which are required as per accounting standards that need to be given, but that are ignored. But now we need to understand these are the financial statements parts. So being auditor, it is our duty to ensure whether we are going to issue an opinion on financial statements which are incomplete or not. Para 18 of AS1, this is the first accounting standards which says that it is necessary that all significant accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statements should be disclosed. So हमें आज ये समझना है first of all non-corporate entities financial statements coverage के अंदर accounting standards, which accounting standards are applicable to entities, because all these pictures regarding disclosure part or presentation part is totally circle on move on to accounting standards. Whenever we decide that these type of accounting standards, these, let's suppose these 10 accounting standard or 20 or 29 accounting standards applicable, then we can find out which type of disclosures are mandatorily we need to give, and then we'll discuss the format of financials. So last topic अपना होगा. So अभी अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर financial statements presentation and format, 24-25 format ICI ने दे रखा है, that is well and good. Why the format is required? Because there is no such requirement, and we can also ensure at our end whether the all accounting disclosures and presentations have been done as per AS. But to make a uniformity, ICI has given that format. Ab question arises to why we are talking this topic, because being auditor, we have an like responsibility to give an opinion on financial statements. Whenever we are giving opinion on financial statements, then there is governed by SA 700, which talk about like auditor's opinion on financial statement. SA 700 बिल्कुल clear बोलता है कि auditor shall evaluate whether financial statements are prepared in material respect in accordance with the requirement of applicable financial reporting framework. That means whatever financial statements on which we are going to issue in our report, that need to be prepared as per applicable financial reporting format. Now the framework, which type of format framework, or we can say like which information should be in financial statement, that's why we can say that it is a complete in all materiality. So there are some points which have been suggested by ICI in standards on auditing. Being auditor, we need to ensure whether the financial statements have adequate disclosure regarding significant accounting policies or selected and applied.
सो अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम इग्नोर करते हैं अभी तक, जो नहीं देते आ रहे हैं, या कुछ देते भी होंगे तो वो प्रॉपर वे में नहीं देते होंगे, प्रॉपर नहीं देते होंगे, कंप्लीट नहीं देते होंगे, सो दैट इज मैंडेटरी, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स we can say that financials are not complete. And the another one is accounting policies which we are using that must be consistent. We know that if there is any change, then we need to give a disclosure that this is the change in a policy. And in some cases, like we in accounting standard, like fixed asset depreciation, so when there is any change in policy, then we need to give a like quantitative amount also. So accounting policies must be consistently applied. Any estimates which is management has been made, like in case of provisions or any like a impairment, so these type of estimate must be reasonable, and information presented in financial statement should be reliable and comparable. Here the word comparable is important, because whenever we are going to issue an opinion, or we are doing an audit of financial statements, so there must be a comparative figure. uh, if this is the first year, then obviously the first year only 1 year figure we can give in financials. But in the second year or onwards, we always need to give comparative figures. That is mandatory to ensure the financial statements are true and fair view. Financial statement must provide adequate disclosure to enable intended users to understand the effect of material transactions and event of information conveyed in financial statements. Like कोई related party के साथ में हम कोई significant transactions किया है, या हम कहें कि कोई हमने नया वर्टिकल से स्टार्ट किया है जिसका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू पार्ट हमारे मतलब करंट ईयर में इम्पैक्ट हुआ है, तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स भी फाइनेंशियल्स में होने चाहिए. टर्मिनोलॉजी यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मस्ट बी इनकंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट. ऐसा नहीं हो कि कहीं पे एक जगह पे हमने बोल दिया फॉर द ईयर एंडेड, अनदर जगह हमने बोल दिया फॉर द पीरियड एंडेड, फिर कहीं पे लिख देते हैं फॉर द 12 मंथ एंडेड. सो दैट शुड बी ए कंसिस्टेंट, हमारे पास एक पैटर्न टर्मिनोलॉजी यूज होनी चाहिए कि कोई ना हो. So if these type of informations are catered by financial statement, then we can say these are complete in material aspect. And if these are complete, then definitely we can issue our opinion in very well manner that there is no qualifications, or we can say that these are in prepared as per accounting standards framework. यहाँ पे ऑडिटर्स की एक और ड्यूटी आती है, पैरा 51 ऑफ एस 700, because the main topic is governed with SA 700, because our like main responsibility is regarding audit report, and that is governed by SA 700. That's why we are discussing कि 700 में क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, या बीइंग ऑडिटर हमें क्या ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें क्या इंफॉर्मेशन चेक करनी चाहिए. वहां पे ऐसे 700 पैरा 51 says that auditor's opinion covers supplementary information also. Supplementary information means notes to account or any information which is relevant to the financials. So जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस इंश्योर करनी होती है कि which accounting standards are applicable to this entity and for current financial years. Accounting standards, once we decided these are applicable, then in each and every accounting standards there are some recognition measurement principles, and apart from that there are disclosure principles, and disclosures are also given which type of disclosure we need to give in financials. So disclosure, we need to take care whether all these supplementary informations, all the disclosures are covered in financials by way of supplementary information. So these are also integral part of financial statements. उनके ऊपर भी हमें कमेंट करना होता है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइक AS19 लीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रेंट की इनकम हम सभी अपने अदर एक्सपेंसेस के अंदर दिखाते हैं, बट देर आर सम डिस्क्लोजर्स आल्सो इन लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंशन है कि लाइक इन द नेक्स्ट 1 year अगर कहीं हमारा कमिटमेंट होता है, लॉक इन पीरियड है, तो नेक्स्ट 1 year में हमारा रेंटल इनकम क्या एक्सपेक्टेशन है, सॉरी रेंटल एक्सपेंसेस की 1 2 3 years में क्या है, देन उसके बाद में क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट क्या होगी फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज के केस में. तो इस तरीके के डिस्क्लोजर्स हमें देने होते हैं. तो कभी भी कोई इंफॉर्मेशन जब देनी हो, तो नोट्स टू अकाउंट्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड वी नीड टू गिव नोट्स टू अकाउंट में क्या कवरेज होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी डिसाइडेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो जो डिस्क्लोजर्स मेंशन्ड है, those which are mandatory to report in financial statements, that all will be a part of notes to accounts, or we can say supplementary information part.
Here one more important thing, whatever information we are giving in financials, that good, but informations which we are giving, that should also be cross reference. Like whenever another information linking to that amount or that information is mentioned anywhere in financial statement, that we need to give a cross reference. A simply example like a earning per share, or we can say like a lease accounting we say, or we can say accounting standard 15, employee benefits. So whenever these type of disclosures we are presenting in financials, so that need to be cross reference in the main note, main informations, we are inventory, if we say that inventory, there are some disclosure we have given, or like inventory valuation we have done, and NRV valuation is done. So these type of information, whatever we are providing in financials, that need to be cross reference. इसके अलावा बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर अभी हम डिस्क्लोजर देखेंगे। मैं इससे पहले एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, जो ऑडिट रिपोर्ट के लिए, जो ऐसे 700 में जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए द ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट विच वी हैव, जनरली वी नीड टू इशू रिपोर्ट इन दैट फॉर्मेट। सो वो एक बार देखते हैं अपन उसको। देखिए, बीइंग ऑडिटर वी आर इशूइंग द रिपोर्ट ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आईसीआई के ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे 700 के अंदर मेंशन्ड है। जैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट है, वैसे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का भी है। वहां पे ओपिनियन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इशू। सो इन दैट केस, where is mentioned in our opinion the accompanying financial statements give a true and fair view of financial position of an entity as at March 31st 2025। ये हम कमेंट करते हैं। जैसे ही हम ये कमेंट करते हैं कि द इंफॉर्मेशंस गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, सो वो ट्रू एंड फेयर कैसे होगा, इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबिलिटी एंड यूजेज ऑफ दोस एंड प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो आज बात करें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का, तो हमें ये देखना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट में हमारा कमेंट जाता है, सो दैट इज प्योरली डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो हमें ये इंश्योर करना है विच आर एप्लीकेबल, or as per those what type of informations disclosures need to be given in financials। and उसी की हेल्प के लिए ICAI has issued a guidance note, एंड वो एक गाइडेंस नोट में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हमें बताता है यूनिफॉर्मिटी के लिए, और वो काफी सजेस्टिव है। उसके बेसिस पे काफी कुछ हेल्प मिलती है कि इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, कंपेरेबल क्या होनी चाहिए, क्या क्या मिनिमम डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं और मिनिमम कंटेंट की बात करते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म के केस में क्या होगा, या हम कहते हैं कि भाई लोन्स की बोरोविंग्स की बात करते हैं, तो उसके केस में क्या क्या फुटनोट्स की फॉर्म में और डिस्क्लोजर्स की फॉर्म में वी नीड टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन। सो वो गाइडेंस नोट हमें हेल्प करता है। यहाँ पे जब ये ओपिनियन दी जाती है, साथ के साथ ही देर इज अनदर लाइन विच इज ए पैराग्राफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फाइनेंशियल्स के लिए। Management is responsible for preparation and fair presentation of financial statements in accordance with aforesaid accounting standards। ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की बात हो रही है। Because in case of non-corporate entity, there is no specific regulatory guidance or no specific, we can say like a statute which make any reference to this type of standard format we need to follow। So majorly concern will governed by accounting standards or ICAI format or suggestive format। फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट जा सकते हैं, बट that is purely depends, being our auditor call, professional call, that we are need to take care, we ensure that whatever information we are going to present in financial different from suggested format of ICAI। so whatever information we are going, that need to we need to ensure that all applicable disclosures and compliances have been done। if we have ensured, then there is no issue। बट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट करनी है, एंड वी आर नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड वी आर नॉट मेकिंग ए प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स एज पर आईसीआई फॉर्मेट और लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो दैट इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड विल से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एन ट्रू एंड फेयर व्यू। सो ये दो रिक्वायरमेंट यहाँ से अराइज होती है कि फाइनेंशियल्स के ऊपर हमें फेयर व्यू देना है। फेयर व्यू क्या होगा, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। अब यहाँ पे बात आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो हम ये देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड
विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, फॉर्मेट हमने डिस्कस किया क्या क्या कवरेज होगा, फॉर्मेट में क्या होगा वो अभी देख लेंगे, उसका जो गाइडेंस नोट में फॉर्मेट दिया हुआ है, दैट्स इट। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नीड टू फॉलो, वो हमें डिस्कस करना है। अब वहां पे क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देयर आर 29 एएस, सारे के सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। In that case also, ICI had issued some clarification or had given some criteria regarding applicability of accounting standards, so that we also need to take care while we are going to audit or we are going through the financial reporting of non-corporate entities. What are the criteria or we think? So this topic we can discuss later. This is the criteria. So now question arise, like in earlier there are 4 levels, level 1, 2, 3, 4, to identify the non-corporate entity, to segregate the non-corporate entity in the 4 parts. Now there are 2 levels only from this year's. So we need to identify, we need to our client in 2 parts, whether it is MSME client or whether it is non-MSME for non-corporate entity cases. If these are MSME, then there are certain exemptions regarding in accounting standards applicability or a disclosure part. So we can consider these exemptions, we can take a benefit of those exemptions. And in case of non-MSME, all accounting standards are applicable. Whenever we are talking about applicability, then it directly linked to the disclosure part only. रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल में कोई एग्जम्पशंस नहीं है, वो तो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। किसी भी कोई ट्रीटमेंट जिस तरीके से करना हो, दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन एएस, सो दैट वी नीड टू फॉलो। वो क्राइटेरिया क्या है जिसकी रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे। MSME मींस ए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जिसकी की इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे जनरली एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, जनरली लिस्टिंग का काम तो कॉर्पोरेट के केस में ही होता है, बट ऐसा नहीं है। देखो कुछ हमने बोला इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आप LLP को भी लिस्टिंग करवा सकते हैं, या हम बात करते हैं कि कुछ इंडिया में से ऑर्गेनाइजेशंस हो कि जो कि रेगुलेटरी गवर्नड होती हो, कोई म्यूचुअल फंड्स हो या कुछ इस तरीके की हो, चिटफंड कंपनीज हो जो कि कॉर्पोरेट भी नहीं है, लेकिन वो भी अगर कहीं लिस्टिंग में जाने की है या कुछ और इस तरीके का मतलब रेगुलेटरी गवर्नेंस होती है, तो वो यहाँ पे कवरेज में आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं MSME नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, तो ऑब्वियसली कि वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। whose turnover excluding other income, turnover में देखो excluding other income लिखा हुआ है, it means the mean turnover directly revenue from operation that will be considered and does not exceed 250 CR in immediately preceding financial year। फर्स्ट ईयर है ऑब्वियसली करंट ईयर का देखा जाएगा, अदरवाइज सेकंड ईयर अनुवाद 250 करोड़ हमारी जो है वो हमें चेक करनी होगी। बोरोविंग्स 50 CR की लिमिट लगी हुई है, एंड उसके अलावा होल्डिंग सब्सिडी ऑफ एंटिटी, अगर हमारा होल्डिंग सब्सिडी की बात करें कुछ कंट्रोल्स हो, लाइक एक LLP ने दूसरी LLP के अंदर कुछ कंट्रोल ले रखा हो या पार्टनरशिप फॉर्म में ले रखा हो, तो वो भी हम एक तरीके से आपस में लिंकिंग बता सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट कवर्ड इन ऑल दीज एक्टिविटी देन दैट विल बी कॉल्ड MSME, और इसके अलावा जो भी है वो नॉन MSME है सारे सारे। Once we decided our organization whether it is MSME or non-MSME, then we will decide which type of accounting standards are applicable, and once we decided the applicability of accounting standard, then our format will be more or less will be easier to us, like which type of disclosures we are required to give in financials। यहाँ पे अब बात आती है लार्ज एंटिटीज की। अगर हम बात करें कि सर्टेन जिनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 29 ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू लार्ज एंटिटीज, कोई एग्जम्पशंस नहीं है, डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, रिकॉग्निशन की, मेजरमेंट के सारे एप्लीकेबल है। अदर देन लार्ज एंटिटी अगर बात करें MSME के केसेस में, तो इन दैट केसेस MSME के केस में कुछ एग्जम्पशंस दी हुई है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर एंटायरिटी नॉट एप्लीकेबल टू MSMEs, जैसे AS3 सेगमेंट एंड EPS एंड डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं है, इनके कोई हमें प्रिंसिपल्स, मेजरमेंट, रिकॉग्निशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस दी हुई है। सर्टेन एग्जम्पशंस की बात करें लाइक AS10 में, 15 में जो एक्चुअल वैल्यूएशन है, AS19 जो लीज का है, तो इनमें कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर पार्ट में मेंशन है। अगर हम डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे जाते हैं तो वहां पे भी
मेंशन किया हुआ मिलेगा पैराग्राफ के अंदर कि दिस इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच नीड टू बी गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट दीज आर नॉट अप्लीकेबल टू एमएसएमई। तो जहां जहां पे भी एमएसएमई की एग्जाम्पशंस है वो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी मेंशन होती है। जब भी कभी डिस्क्लोजर्स की एग्जाम्पशंस की बात करते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग की बात होती है, तो उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर एग्जाम्पशन हम क्लेम कर रहे हैं जिसका बेनिफिट हम ले रहे हैं, जनरली एमएसएमई के केसेस में बहुत सारी एग्जाम्पशंस मिलती है डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग, अगर लेते हैं तो वो हमें मेंशन करनी होती है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज नोट के अंदर, जो कि जनरली हमारा सेकंड थर्ड नोट पे मेंशन करते हैं कि कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग पॉलिसीज में डालते हैं। उसके बाद में हम उसके जो वेरियस टाइप ऑफ लाइक सेगमेंट होते हैं, फिक्स असेट हुआ या हमारा जो टैक्स है या रेवेन्यू है, उन सब के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पॉलिसीज हम मेंशन करते हैं। तो वहीं पे हम ये भी मेंशन करते हैं कि दीज एंटिटीज आर कवर्ड अंडर एमएसएमई क्राइटेरिया क्लासिफाइड बाय आईसीआई, और जो भी एमएसएमई के अप्लीकेबल अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स वगैरह वो सारे हमने प्रेजेंट किए हैं। तो इसी तरीके के हमें एक कमेंट वहां देना होता है। सेम है रिवर्स सिचुएशन, अगर हम एग्जाम्पशंस को अवेल नहीं करते हैं, वी आर नॉट वी आर voluntarily showing any additional information in financials, so that we need to give a disclosure, but partially are not allowed। ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि हम कुछ तो डिस्क्लोजर दे रहे हैं, कुछ का नहीं दे रहे हैं, तो वो दैट इज नॉट अलाउड। आइदर वी फॉलो कंप्लीटली दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वी आर नॉट फॉलोइंग। सो ये हमने ओवरव्यू डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन की जो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो वो गवर्न कहाँ से होता है और उस प्रेजेंटेशन में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, which type of information or disclosure we need to give in that financial statements, that all are governed by ICI, accounting standards issued by ICI. So now next question will be, we are going to issue a report and हमें उसका प्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट देखना है कि फाइनेंशियल्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें क्या क्या आईसीआई ने जो अभी गाइडेंस नोट आया है जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बताता है, तो उसमें कुछ एडिशनल या कुछ सजेस्टिव इंफॉर्मेशन क्या हमें दे सकते हैं या कुछ हमें डिस्क्लोजर्स क्या मिलते हैं। ये इसी के रिगार्डिंग जो हमने पहले स्लाइड मिस करी थी, यहाँ पे आते हैं इस गाइडेंस नोट में, लाइक कंपनीज एक्ट, देर इज नो मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ राउंडिंग ऑफ इन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। कंपनीज एक्ट के केस में मैंडेटरी है कि आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे नहीं है। बट गाइडेंस नोट में एक सजेशन दिया हुआ है कि इफ यू वांट टू मेक राउंडिंग ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो राउंडिंग ऑफ आपको इस तरीके से करनी है सो दैट ए कंपेरेबल फिगर रहे। अगर 100 करोड़ से नीचे है हमारी टोटल रेवेन्यू, देन हम नियरेस्ट 100 में 1000 lakhs मिलियंस के अंदर राउंडिंग कर सकते हैं। अगर 100 करोड़ से ऊपर है तो नियरेस्ट लैक्स एंड मिलियंस के अंदर कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक फिगर एक थोड़ा रीडेबल फॉर्म में हो, बिकॉज इफ इन सम केसेस देर आर फिगर्स इन करोड़, सो देर आर मल्टीपल जीरोस इन दैट फिगर, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फिगर को गो थ्रू करना। तो राउंडिंग भी उसके केस में हम कर सकते हैं, बट वेन एवर यू स्टार्ट राउंडिंग देन आइडियली इट शुड बी कंटिन्यूड, कि पूरे फाइनेंशियल्स में राउंडिंग होनी चाहिए और देन इन फ्यूचर भी ये राउंडिंग होनी चाहिए, कि सो दैट एक आइडियल वे प्रेजेंटेशन रहे। उसके अलावा बात करते हैं कंपैरेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर फिगर्स, दैट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, पी&एल एंड नोट्स अकाउंट्स। देखिए कंपेरेबल फिगर बैलेंस शीट एंड पी&एल में तो जनरली हम दे ही देते हैं फर्स्ट 2 पेजेस के अंदर। नोट्स टू अकाउंट जो होते हैं जिन पे नोट की हम बात करते हैं, अदर एक्सपेंसेस तक का नोट होता है, फिक्स असेट, रेवेन्यू, क्रेडिट, इन्वेंट्री, लोन्स, उन सब के अंदर भी फिगर डालते हैं। बट नोट्स टू अकाउंट्स में भी कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं, वो भी हमें वहां पे, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात करें, whenever we are giving a related party transaction disclosures, so we need to ensure that there must be a comparative disclosures, like last year information we need to also give in financial statements। apart from that हम एक डिस्क्लोजर पार्ट की बात करें, फाइनेंशियल्स का मीनिंग ये नहीं है कि छोटे छोटे लाइन आइटम को भी हम बढ़ा के, और एक अदर एक्सपेंस का नोट जो जनरली हम बात करते हैं जिसके अंदर जनरली 10 to 15 लाइन आइटम होते हैं, और वहां पे अगर 50 तरीके की लेजर है या 50 तरीके की इन्फॉर्मेशन है, तो वी आर गिविंग 50 लाइन आइटम्स। तो अदरवाइज वो रीडेबल फॉर्मेट ही नहीं रहेगा, बैलेंस शीट अननेसेसरी लेंथी हो जाएगी। तो वहां पे हम सेम नेचर की जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं या इनकम होती है, उनको क्लब कर सकते हैं, और उस क्लबिंग के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये हमें करना चाहिए। 1 लाख या फिर 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू विच एवरेज हायर साइड। सो अकॉर्डिंगली हम एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करके, इससे भी ज्यादा ऊपर की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अमाउंट हो, तो वो हमें सेपरेट डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी है, एल्स हम उसको क्लब कर सकते हैं। ये हमारे फाइनेंशियल्स के, ये तो
मेन डिस्कशन है कि बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू हम कब बोल सकते हैं, बीइंग ऑडिटर हमारी क्या ड्यूटी है, एंड to make a comment on true and fair view, which type of informations and disclosures generally we need to take care, or we say that what are the basis of disclosures, from where we can get information that which type of disclosures or information are required to be given. So वो सारा डिस्कशन किया. Now we will discuss or we will see the presentation part of like a financial statement format, जो कि गाइडेंस नोट में सजेस्ट किया गया है. उसमें कंपेरेबल फॉर्मेट है, वेरियस फुट नोट्स वगैरह भी मेंशन है, उसमें एक लाइन आइटम्स भी मेंशन है कि हमें जनरली किस तरीके का प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट के अंदर करना चाहिए. तो एक बार के लिए हम वो फॉर्मेट्स हम ओपन कर लेते हैं साथ में. ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अदर देन एलएलपी. एलएलपी के लिए एक सेपरेट गाइडेंस नोट है, तो वो मोरलेस सिमिलर ही फॉर्मेट है, खाली पार्टनर्स कैपिटल की जगह वहां पे थोड़ा बहुत एक ऑनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल कुछ इस तरीके का माइनर डिफरेंस है. तो हम इस फॉर्मेट पे डिस्कस करते हैं. दिस फॉर्मेट इज मोर एंड लाइक कंपनीज एक्ट फॉर्मेट. जैसे हम कॉर्पोरेट एंटिटीज का बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाते हैं, मोटा मोटी वैसा ही फॉर्मेट है, बिकॉज देर इज स्टैंडर्ड पैटर्न्स और लाइक ए सिमिलरिटी. So if all organizations, all non-corporate entities are presenting their financials in this type of format, then we can say that there is a very comparable information, or we can easily like go through the financial information, can analyze the informations. बिकॉज कंपनीज के केस में बड़ा इजी है हमारे लिए, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट सा होता है, हम किसी भी 2-3 कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वी कैन इजीली फाइंड आउट. नॉन कॉर्पोरेट के केसेस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते थे, अलग अलग प्रेजेंटेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहे हैं, सम पीपल्स आर गिविंग, सम आर नॉट गिविंग. सो नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट विच आईसीआई हैज सजेस्टेड बाय वे ऑफ इशूइंग ए गाइडेंस नोट. सो ये फॉर्मेट हमें आइडियली जो अभी करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो भी बैलेंस शीट हम साइन करने जा रहे हैं, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उसमें हमें ये फॉर्मेट कंसिडर करना है. यहाँ पे बात करते हैं ऑनर्स फंड. तो जब हम बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेट लाइक अदर देन कंपनी, तो ऑनर्स लाइक प्रोप्राइटरशिप के केस में हमारा ऑनर्स या फिर इंडिविजुअल पर्सन का जो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है. पार्टनर्स के केस में हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, लाइक कंपनी एक्ट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे फॉर्मेट है. Here in case of some partnership organizations, there is only one account, they are making a fluctuating capital account. So in that case उसके अंदर हम करंट अकाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ओनली कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्फॉर्मेशन आ सकती है, दैट्स ओके. रिजर्व सरप्लस कोई स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, कोई लाइक मेंबर्स फंड, या फिर हम बात करें कि आरडब्ल्यूए के केसेस में जैसे हमारा कोई कंट्रीब्यूशन होता है, कोई सिंकिंग फंड होता है, तो इस तरीके के कोई भी अगर रिजर्व सरप्लस के पार्ट होते हैं, दैट वी कैन शो हेयर. सो वो हमें एक यहाँ पे सेपरेट रिपोर्ट करने हैं रादर देन उनको कैपिटल का ही एक पार्ट बना के. नॉन करंट लाइबिलिटी में बात करते हैं, वहां पे एक स्टैंडर्ड है कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हमें शो करनी पड़ेगी, उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. प्रोविजंस के केस में वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, बिकॉज सबसे क्लासिक प्रोविजन हम बात करते हैं AS 15 का. जनरली नॉन कंप्लायंस सबसे ज्यादा AS 15 के अंदर ही होती है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में. whenever any organization is employed more than 50%, then AS 15 उसके ऊपर अप्लीकेबल है, उसके डिस्क्लोजर्स वगैरह अप्लीकेबल है. वहां पे हमें ये देखना है कि हम एमएसएमई है, नॉन एमएसएमई है, हमें डिस्काउंटिंग करनी है, एक्चुअल वैल्यूएशन करवाना नहीं करवाना, दैट इज अ सेपरेट पार्ट. वो जब भी आप एक एएस का डिसीजन ले लेते हैं, डिस्क्लोजर पार्ट आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें रिपोर्ट करना है, तो दैट वी नीड टू गो थ्रू कि हमें कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने हैं, दैट सेपरेट एक्सरसाइज है. बट वहां पे नेक्स्ट 1 ईयर में क्या क्या डिस्क्लोजर प्रोविजन है, एंड नेक्स्ट 1 ईयर से आगे जो क्या प्रोविजन हमारा लाइबिलिटी आने वाली है, तो वो हमें सेग्रीगेट करना होता है. तो प्रोविजन वी नीड टू आल्सो टू गिव इन अ सेपरेट वे, लाइक लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन. बोरोविंग सेम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सेग्रीगेट करनी पड़ेगी. ट्रेड पेबल्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे आते हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्क्लोजर देने हैं. एमएसएमई नॉन एमएसएमई का हमें डिस्क्लोजर देना है. अदर करंट लाइबिलिटी एंड ऑल थिंग, दिस इज असेट पार्ट. नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पे हमें अलग अलग
पीपी जो कि टेंजिबल होती है उसका, इंटेंजिबल का अलग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर कोई भी हमारे पास ऐसी एसेट होती है वो सेम इंटेंजिबल की कोई एसेट होती है और वो अगर वर्क इन प्रोग्रेस होती है तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना होता है। इनके बाद में आगे इनके और फर्दर डिस्क्लोजर है कि लाइक हमें जो भी प्रोजेक्ट अभी सस्पेंड किए हुए हैं उनका क्या डिस्क्लोजर है, या फिर जो ओवरड्यू हो गए उनका क्या डिस्क्लोजर है, वो हमें और देना होता है। करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड नॉन करंट एसेट। तो इस तरीके से ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के केस में बात करें तो हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी कि इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ कर रखी है, या उसकी कोई वैल्यूएशन हो, या उसकी कोई लाइक करंट जो भी अगर एनआरवी डाउन होती है, अगर परमानेंट डिमिनिशन होता है, तो उन तरीके की भी हमें इन्फॉर्मेशन फुटनोट की फॉर्म में वहाँ आगे देनी होती है। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस के केसेस में भी we need to take care like there is AS3 accounting standard 3। अगर accounting standard 3 applicable है, it means we are like large entity, so in that case we need to take care because cash and cash equivalent, and we need to make a differentiation in cash and bank balance। कोई ऐसी अमाउंट विच इज नियरली विद इन 3 मंथ्स रेडीली कन्वर्टेबल इन कैश हो तो दैट विल बी कवर्ड इन कैश इक्विवेलेंट। सो हमें वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, कैश एंड कैश बैंक बैलेंस के दो पार्ट हो जाएंगे, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक अदर बैंक बैलेंस। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अदर करंट असेट, दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक नोट नंबर 1 and 2। जनरली ये मिस होता है, ये यहाँ पे आईसीआई ने एक फॉर्मेट के अंदर डाला है कि हमें नोट नंबर 1 में मेनली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कंपनी के ब्रीफ लाइक एंटिटी के रिगार्डिंग ब्रीफ इंफॉर्मेशन। एंटिटी की नेचर लाइक ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है, उसका पैन क्या है, या हम कह सकते हैं उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग है तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करती है, रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से प्लेस पे। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे एक एंटिटी की यहाँ डालनी होती है। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, देन हमें जो भी हमारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है एरिया की रिगार्डिंग, फिक्स एसेट, या हम बात करें कि हमारी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रेवेन्यू हो, या लीज, या कोई एम्प्लॉय बेनिफिट डिस्क्लोजर्स, तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है वो सारी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी होती है कि दीज आर द पॉलिसीज वी आर गोइंग थ्रू और वी आर टेकिंग केयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये इंटीग्रल पार्ट हमारे फाइनेंशियल्स का होगी। जब हम बात करते हैं कि accounting policies are integral part of our financial statements, so it means being auditor we are making comment on all financial statements including those notes to accounts or disclosure part also। now P&L की बात करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, दैट इज वेरी सिंपल लाइक कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉर्मेट। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री एंड ऑल दी टाइप ऑफ डिस्क्लोजर वी आर रिक्वायर्ड टू गिव, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम हो, कोई एनी ट्रांजेक्शन्स लाइक वी आर सम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो उसका एक अलग डिस्क्लोजर जाएगा, या हम कुछ एक्सेप्शनल आइटम की लाइक हमने किसी सब्सिडरी या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइन में कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया बट कोई इम्पेयरमेंट हो गया और हमें लगता है कि उसको एक स्पेसिफाई यहाँ डिस्क्लोजर करने की जरूरत है, तो उस तरीके के यहाँ डालने होंगे। जो लाइन आइटम एक मैन यहाँ पे जो दिखाई गई है वो है पार्टनर्स रेमुनरेशन। ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर ना शो करके ये प्रॉफिट बिफोर पार्टनर रेमुनरेशन जब हम अमाउंट निकाल लेते हैं तो आफ्टर दैट वी नीड टू शो पार्टनर्स रेमुनरेशन। remuneration amount obviously whatever amount we can give, but as per filing like income tax act while filing ITR we need to take care there should be a limit। तो जो भी इनकम टैक्स के अंदर अलाउ है तो जनरली वो अमाउंट हम यहाँ पे कि कितना रेमुनरेशन हम दे रहे हैं तो दैट नीड टू बी टेक केयर हियर और नेट नीड टू बी डिस्क्लोज इन सेपरेटली एज ए लाइन आइटम इन फाइनेंशियल्स। देन टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, और उसके बाद में हम जो भी हमारा प्रेजेंटेशन डिसकंटिन्यू, अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कुछ है, कुछ ऐसी प्रोजेक्ट या कोई ऐसा प्लांट जो है कि हमने उसको अगर होल्ड कर लिया या हमारा जो इम्पेयर हो चुका है और हमने उसको प्रोजेक्ट को बंद करने जा रहे हैं, तो इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसका एक सेपरेट हमें P&L यहाँ पे देना होता है। देन पार्टनर्स कैपिटल का एक जो फॉर्मेट है कि हमें पार्टनर्स का ओपनिंग क्लोजिंग मूवमेंट जो देनी होती है वो इसके अंदर मेंशन है। उसके अलावा हम बात करें कि करंट अकाउंट है वहाँ पे मूवमेंट हमें करनी होगी। रिजर्व सरप्लस में जो भी जितने भी टाइप से हमारे रिजर्व्स हैं वो यहाँ पे होंगे। बोरोविंग पे हम थोड़ा सा एक बार टाइम लगाते हैं। बोरोविंग के केसेस में हमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड यहाँ पे एक तो डिस्क्लोजर देना है। सिक्योर्ड पार्ट, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज वी लाइक गिवन टू द लेंडर,
तो क्या सिक्योरिटी है उसकी, लोन के रिगार्डिंग हमारे टर्म्स ऑफ रीपेमेंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एज ए फुट नोट में हमें यहाँ पे शो करनी होगी। अगर हम बात करते हैं नीचे फुट नोट की बात करें, तो सिक्योरिटीज, रीपेमेंट टर्म्स, इंटरेस्ट रेट क्या रहती है, कुछ हमने उसमें किसी पार्टनर्स ने या किसी ने अगर प्रोप्राइटर ने कुछ गारंटी दे रखी है तो वो सभी यहाँ डिस्क्लोज करनी होती है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये हमें यहाँ पे देनी जरूरी है। All these type of informations are required to ensure the fair and like a correct or like a good presentation of financial statements. So if we are missing these information, then we can say that readers of financials are not able to assess the actual picture. So इस तरीके की informations we need to given in financials. तो सेग्रीगेशन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, देन उसके अंदर टर्म लोन, रीपेबल्स, डिमांड लोन, उसके बाद में उसके फुटनोट हमें जो भी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है वो हैं। डेफर टैक्स, असेट एंड लाइबिलिटीज, जो भी कंपोनेंट हमारे होते हैं उनकी एक मूवमेंट की भाई किस किस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हमारी डेफर टैक्स असेट है या लाइबिलिटीज है, फिर उनका एक नेट बैलेंस जो कि हमें प्रेजेंट करना होता है। देखिए जो हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल्स कैन डिपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिकॉज दिस इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर्मेट बट दिस इज अ सजेस्टिव। बट डिपार्ट की बात करें, इट मीन्स इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ नहीं दे रहे हो उसको आप नोट्स अकाउंट में अगर दे दो, यहाँ पे हमने सिंगल लाइन आइटम लिखा डेफर टैक्स असेट या लाइबिलिटीज नेट अमाउंट लाइक फॉर 1000 रुपीज, तो उसका ब्रेकअप नोट्स अकाउंट में दे सकते हैं कि 1000 रुपीज का ब्रेकअप, असेट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। वो यहाँ पे हम उसको डिपार्चर नहीं बोलेंगे, वो एक डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर है। तो आपका प्रेजेंटेशन का वे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट वी नीड टू इंश्योर दैट ऑल दीज टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर कवर्ड। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होना इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से करते हैं दैट इज आवर कॉल। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह कम डालते हैं। उसके अलावा प्रोविजंस की बात करते हैं तो प्रोविजन के सेग्रीगेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के प्रोविजन हो या अदर प्रोविजन है, इनकम टैक्स के बैलेंस, नेट ऑफ प्रोविजन, वो सब हमें यहाँ शो करने होते हैं। वारंटीज का कुछ प्रोविजन हो तो वो हमें डिस्क्लोज करना होता है। ट्रेड पेबल, एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई में क्लासिफिकेशन। एमएसएमई का तो हमें साथ के साथ उसकी आजकल एमएसएमई वन की रिटर्न जो होती है या फिर जो भी कि हमारा काफ़ी कंप्लायंसेस और इस टॉपिक पे चल रहा है कि डिले फाइलिंग के डिले पेमेंट के केस में हमें इंटरेस्ट की भी कुछ पेमेंट करनी होती है, तो वो सभी भी हमें इंश्योर करने पड़ते हैं कि दैट आर नॉट ओनली अप्लीकेबल टू द कंपनीज, वो हमारे नॉन कॉर्पोरेट के ऊपर भी अप्लीकेबल है वो सारे लाइक एमएसएमई गाइडलाइंस, तो वो भी हमें इंश्योर करनी है। उसका डिस्क्लोजर्स हमें देना होता है, कुछ इंटरेस्ट का प्रोविजन हमने बनाया नहीं बनाया, तो वो सब हमें यहाँ पे फाइनेंशियल्स के अंदर रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अदर करंट लाइबिलिटीज में जो भी इंटरेस्ट का हो, अनअर्न्ड रेवेन्यू। unearned revenue generally this type of income which we have not like रेंट की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी को प्रीपेड रेंट दिया या किसी ने हमें प्रीपेड रेंट दिया, हमने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, हमें रेंट मिला हुआ है कि 2 मंथ्स का एडवांस में फर्स्ट मार्च को मिला है, तो 1 मंथ रेंटल जो कि 31 मार्च तक हमारा यूज हो गया, तो दैट इज आवर इनकम। बट द 1 मंथ एडवांस इनकम विच वी हैव रिसीव्ड दैट इज अनअर्न्ड रेवेन्यू, सो दैट शुड बी शोन एज ए लाइबिलिटी हियर बिकॉज दैट इज नॉट आवर इनकम। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन तो अपने को यहाँ देनी होगी। एक्रूअल बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, नॉट इन ऑन बेसिस ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो भी नेचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट जो हमें देनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रॉस और एक्यूमुलेटेड दोनों की मूवमेंट, ओपनिंग बैलेंस देन एडिशन डिलीशन और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस, तो ये मूवमेंट वाला पार्ट हमें देना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात, देर इज सब केसेस लाइक मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो द इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन रेट। कोई इशू नहीं है, इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन रेट्स आप फॉलो कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट मैंडेटरीली, क्योंकि अकाउंटिंग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक जो कंपनीज एक्ट के केस में हमें सेपरेट गाइडलाइन दी हुई है, तो वो डेप्रिसिएशन के रेट फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम मैनेजमेंट के असेसमेंट के बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, बट जो भी यहाँ पे वो मूवमेंट हमें डालना जरूरी है। फिर हम देखते हैं इंटेंजिबल, देर इज नो इश्यूज, इंटेंजिबल में भी सेम मूवमेंट वाला केस होगा, अमोटाइजेशन वगैरह। CWIP की मूवमेंट हमें डालनी है, ओपनिंग एडिशन कैपिटलाइजेशन। सीविप के केस में अगर कोई भी हमारा जैसे करंट ईयर में असेट ट्रांसफर होती है फिक्स असेट के केसेस में, या कोई सीविप होल्ड पे है या कोई सीविप हमने सस्पेंड करा हुआ है कि अभी प्रोजेक्ट अंडरलाइन स्टेज पे है और कुछ किसी भी रीजन से प्रोजेक्ट में अभी कोई कैपिटलाइजेशन नहीं हो रहा है या फिर अंडर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फुटनोट की फॉर्म में मेंशन करें या फिर आइदर इन वी कैन गिव इन्फॉर्मेशन बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट। सो दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन वी आल्सो नीड टू गिव।
देन उसके अलावा बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, करंट नॉन करंट, उनकी वैल्यू, उसके अलावा उसमें कोई भी प्रोविजन हमने बनाए हो, उसके अलावा उसका अगर हम जैसे अलग अलग कैटेगरीज किस नेचर में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका परमानेंट डिफिनेशन अगर कुछ होता है तो वो हमें डिस्क्लोज करना होता है। और कोटेड अनकोटेड है तो उस केसेस के अंदर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी होती है। तो ये फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, like the purpose of this format is ICI to give like help to our members to make a presentation in good way, or like various type of disclosures or a standard format to provide chartered accountants so that they can easily identify which type of informations or like disclosures we need to give for uniformity or a standard format or a better fair presentation in financial statement. सो मेन कंसर्न ये गाइडेंस नोट का जो था या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसी में वो उनका पर्पज जो है कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल हो और उसका एक प्रॉपर डिस्क्लोजर जाता हो। हम उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आता है लोन्स एंड एडवांस, ठीक है, गुड डाउटफुल की इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउटफुल है तो उसका प्रोविजन है, तो प्रोविजन को हम एक सेपरेट डिस्क्लोजर लाइन आइटम करके रादर देन उसको नेटिंग ऑफ करने की कि दीज आर द सेपरेट प्रोविजंस वी हैव बीन क्रिएटेड पार्टनर से, या उनके जो भी हमने कुछ लोन वगैरह ले रखे हैं तो उनका डिस्क्लोजर हमारा यहाँ पे सेपरेट लाइन आइटम हो जाएगा। एडवांस टैक्स, जो भी हमारे इनपुट के बैलेंस है, चाहे वो जीएसटी का बैलेंस हो या कोई टीडीएस रिकवरेबल हो, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें सेपरेट शो करनी होती है रादर देन एक सिंगल लाइन आइटम पे कि दिस इज द बैलेंस विद गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो उसमें हम एक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे अलग अलग नेचर के जो भी हो, और लोन से नेट कैपिटल एडवांस हो गया, देन नॉन करंट असेट सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसमें भी हमें ये देखना होता है डिपॉजिट एंड लोन्स एंड एडवांसेस में कि लाइक करंट एंड नॉन करंट जहां भी हो तो दैट वी नीड टू बी सेग्रीगेट। नॉन करंट असेट या लाइबिलिटी जो है वो नॉन करंट वाले पार्ट के अंदर शो करनी होगी, करंट वाली करंट वाले पार्ट के अंदर। इन्वेंट्रीज अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारी रॉ मटेरियल डब्ल्यू अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने डाली है। इसके अंदर कुछ इन ट्रांजिट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं अलग अलग इन ट्रांजिट। अगर फिनिट गुड्स के केस में है तो वी कैन मेक अ सेपरेट डिस्क्लोजर इन फिनिट गुड्स, और रॉ मटेरियल के है तो उसके केस में दे सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में मोर देन लेस देन 6 मंथ्स वगैरह है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस में जो बात कर रहे थे फिक्स डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसी डिपॉजिट्स जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स होती है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट शो होगी। जो एफडी जो मोर देन 3 मंथ से ज्यादा मैच्योरिटी होती है वो हमारे बैंक बैलेंस का पार्ट होगी। कुछ ऐसी बैंक बैलेंसेज या कुछ ऐसी फिक्स डिपॉजिट भी हो सकती है which are held as a margin money, or we can say like the fixed deposit are placed with the like government authority for any legal cases or any region. So these type of information we need to give separately, like other bank balance, or we can say like other non-current assets if they are in nature of more than 1 year. So there is a separate type of disclosure we need to give for a basis of nature of like transactions। और अदर बैंक बैलेंस, ईयर मार्क बैंक डिपॉजिट्स और जो भी मार्जिन मनी उनका सेपरेट डिस्क्लोजर्स होगा। अदर असेट की हम बात करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये एक्साइज ड्यूटी वैसे इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, एज सच एक्साइज ड्यूटी का अब इतना कोई खास रेलेवेंस है नहीं। और सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इनकम का पार्ट। सो जिस तरीके के आप मटेरियल के अंदर देखेंगे मूवमेंट रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है रॉ मटेरियल की, देन परचेज एंड क्लोजिंग करके तो एक मूवमेंट हमारी इसके अंदर बनती है। तो कुल मिलाकर जो फॉर्मेट हमें जो गाइडेंस नोट ने जो सजेस्ट किया है, तो वो फॉर्मेट दैट इज इलस्ट्रेटिव और वी कैन से लाइक ए वेरी डिटेल्ड फॉर्मेट विच आर प्रोवाइडिंग सम गाइडलाइंस क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इसमें शो करनी चाहिए। तो चेंज इन इन्वेंट्री, अगर कोई हमारा जो ओपनिंग क्लोजिंग में मूवमेंट होती है, लाइक अगर ट्रेडिंग, अगर गुड्स हम गुड्स ट्रेडेड करते हैं तो स्टॉक एंड ट्रेड होता है तो उसका एक सेपरेट नोट हमें देना होगा। अगर जो इन्फॉर्मेशन अप्लीकेबल नहीं हो दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन डिलीट, लाइक अगर वी आर नॉट मेकिंग एनी ट्रेडिंग इन फिनिट गुड्स, सो स्टॉक एंड ट्रेड की लाइन आइटम हमें देने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पीएफ, ईएसआई या जो लेबर वेलफेयर फंड, इस तरीके की कोई भी कंट्रीब्यूशन हो दैट वी नीड टू शो सेपरेटली, लाइक दीज आर द कंट्रीब्यूशन पार्ट एंड ग्रेचुटी एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर। सो देयर इज सम this type of activity we need to like information show separately। Finance cost, so interest expenses on loan, on finance lease, and the another one line item which is generally if we are charging any interest on partners capital or we are paying any interest to the partners, so then there is a separate line item interest on partners capital or members, so this type of information, or depreciation and amortization,
So on tangible and intangible, so both assets, so there should be a different line items and other expenses. तो कुल मिला के ये जो हम बात करते हैं कि दिस इज आवर लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मेट which ICI has suggested or informations we have been given. सो ये एक फॉर्मेट उन्होंने एक मेंशन किया है कि जिसमें मेनली इस तरीके की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, बट दिस फॉर्मेट इज लाइक अप टू अदर नॉट अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें उन्होंने मेंशन किया अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड हमारे जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स, बिकॉज वी आर इशूइंग आवर रिपोर्ट एज पर एस ए 700, so that's why in this case we need to give ensure that any relevant informations are presented by way of notes to account in financial statements. So इस फॉर्मेट के साथ में हम अगर देखेंगे कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब डिस्क्लोज हो जाए, कोई ऐसा मिस ना हो, ट्रू फेयर व्यू के ऊपर हम अपना कमेंट करते हैं तो वो हमें देखनी है। अगर नहीं करते हैं तो उसका क्या होगा, उसका इम्प्लीकेशन देखिए ऐसा है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो हम जानते हैं कि अगर ड्यू केयर अगर नहीं करी जाती है, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस होती है फाइनेंशियल्स में, एंड इवन ऑडिटर वी आर मेकिंग इन कमेंट दैट ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड, or we are making a comment like we are giving opinion that financial statements are giving a true and fair view presentation. So वो है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि लाइक स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट एक बिल्डअप, लाइक बैलेंस शीट का अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो अपनी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है या जिनको हम बैलेंस शीट या फाइनेंशियल्स का जो यूज है तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक वो चैलेंजिंग हो जाता है। उनकी इंफॉर्मेशन वी आर नॉट एबल टू कैटर ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल्स। तो इस तरीके से हमने कुछ ये देखा। तो आज का ये अपना मेन जो डिस्कशन का टॉपिक था वो यही था कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में क्या क्या कवरेज है, देन उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पार्ट में क्या क्या हम कवर करेंगे, नॉट ओनली बैलेंस शीट एंड P&L, उसके अलावा हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमारे नोट्स टू अकाउंट्स और डिस्क्लोजर पार्ट जो भी फाइनेंशियल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इन केसेस कैश फ्लो अप्लीकेबल है तो कैश फ्लो भी। देन वो सारा डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल्स में अप्लीकेबल है उसके ऊपर ऐसे 700 के हिसाब से हमें एक कंप्लायंस करनी होती है, हमें एक ओपिनियन देनी होती है ट्रू एंड फेयर व्यू पे। उस ट्रू एंड फेयर व्यू की इंश्योरिटी के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से अप्लीकेबल है दैट वी नीड टू टेक केयर। अप्लीकेबिलिटी के बाद में उनमें कौन कौन सी एग्जाम्पशंस या डिस्क्लोजर है दैट वी नीड टू टेक केयर। एंड देन उसके बाद में आईसीआई का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो सजेस्ट किया है जिससे कि मोर और लेस एक यूनिफॉर्मिटी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है, तो वो हमें फॉलो करना चाहिए। सो दैट इज एजेंडा ऑफ दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कि हमें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में फाइनेंशियल्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अब हम इसके अलावा कुछ अगर हमारे क्वेश्चंस हैं या जो भी है तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं। सो मेनली दीज आर कवरेज Yes, इन दिस। Gyanji, wonderful presentation. But many हाँ question arises here. First one is हम एक एक करके लेते हैं so that हाँ डिस्कशन भी होता रहेगा। एक बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने ऑडिट क्वालिफिकेशन की बात की है करंट स्लाइड में, थर्ड नंबर पर, सेकंड बुलेट पॉइंट। हाँ तो ऑडिट क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ client is not preparing the financial statement as required by ICI, then we need to write it. बिल्कुल सर, अगर If we are आईसीआई issuing the report, अगर जहां पर हमें कोई ऑडिट ही नहीं करनी है वहां पर तो रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। देखिए जनरली द कंसर्न अराइज इफ वी आर जनरेटिंग ए यूडिन लाइक यस। वी आर सर्टिफाइंग एनी इंफॉर्मेशन, सो इट इन दैट केसेस वी नीड टू गिव एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस। This is a one pager or two pager report, whichever हम्म। format has been suggested. राइट। So in that report, we clearly mentioned that in our opinion, financial statements are presenting true and fair view. And true and fair view, that is a mandatory condition that must be followed as per accounting standards. So if accounting standards are not followed or any disclosures which is required to be given but are not given in financials, then definitely this is a not true and fair view. And in that case, we need to qualify that report and we need to mention that financials are not as per applicable accounting framework or disclosures. We need to write in our audit opinion. Yeah, definitely we need to mention. Is there any changes allowed in the format? जैसा कि आपने फॉर्मेट्स बताया, बहुत सारी फिगर्स छोटी एंटिटी पर एप्लीकेबल ही नहीं Definitely, होंगी। definitely. देखिए format definitely we can modify accordingly our requirement. This format is suggestive format. ओके। अगर कोई रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया स्टॉक एंड ट्रेड,
बिकॉज जनरली कुछ सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री या स्टॉक एंड ट्रेड अप्लीकेबल नहीं है, तो दैट फॉर्मेट, दैट पर्टिकुलर लाइक ए नोट वी कैन इग्नोर। ऐसे ही उसके अलावा अगर हमें कुछ लगता है कि कोई एक्स्ट्रा लाइन आइटम है जो हमें देना है, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो कुछ जैसे ऑन अदर द एक्सपेंसेस में, फेस ऑफ द बैलेंस शीट और इन द नोट्स टू नो नो अकाउंट? नो, नहीं, फेस ऑफ द बैलेंस शीट के अंदर और एडिशनल कोई लाइन आइटम का स्कोप नहीं है, क्योंकि नहीं, दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट, वो ऑलरेडी फेस एग्जिस्टिव ऑफ पी लिस्ट एंड है, एल एंड बैलेंस शीट में कवर करी हुई तो है। इसमें से हटा सकते हैं, इसके, ऐड करना है तो नोट्स हाँ, में ऐड कर हटा सकते सकते हैं, हैं। क्योंकि और एडिशनल कोई लाइन आइटम इसके अंदर नहीं डाल सकते। राइट। जो सेकंड अप्लीकेबल नहीं है वो क्वेश्चन। हटाया जा सकता है। राइट। रुद्रा जी ने पूछा है, कैन वी गिव फिगर्स इन फुल आईएनआर विदाउट राउंडिंग ऑफ? आई थिंक इट हैज बीन डिस्कस। राउंडिंग ऑफ के बारे में पूछा है। डेफिनेटली वी कैन गिव। हम्म, राउंडिंग ऑफ इज राउंडिंग नॉट ऑफ एक मैंडेटरी, ऑप्शनल है, दैट इज, यस यस, दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल। हाँ अरुण हाँ, गर्ग जी तो हम दे पूछ रहे सकते हैं। हैं, इन पार्टनरशिप फर्म AS22 deferred tax is applicable or not based on the सर differences of timing difference or depreciation as per the सर books of सर account? सर पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, वहां से एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए आईसीआई ने जो क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है उसके कि वी नीड अकॉर्डिंग टू आती है, राइट। आइडेंटिफाई एमएसएमई और नॉन एमएसएमई। अगर आपका टर्नओवर 250 सीआर से प्लस है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, और अगर मान लो वो ऐसा टर्नओवर करती है लाइक 270 सीआर का ट्रांजेक्शन है, तो उस केसेस के अंदर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, देन सारे आपको लग कोई जाएंगे एग्जाम्पशन फिर। नहीं है, और सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने ही होंगे। नहीं, आई थिंक नॉन MSME पर भी AS22 तो लग ही जाएगा। हाँ, एमएसएमई पे हम्म। डिस्क्लोजर पार्ट में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। हम्म। ES22 लगेगा, इनकम टैक्स का लगेगा, डिस्क्लोजर में जो हम बात करें कि लाइन आइटम का डिटेल डिस्क्लोजर, जो हमने हम्म। देखा कि भाई डेफर टैक्स और असेट और लाइबिलिटीज हमें डिटेल में देना होता है, क्या क्या हम्म। ट्रांजेक्शन हम्म। वाइज है, वो हमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम्म। सो वो देखिए, आपको स्पेसिफिकली एएस के अंदर डिटेल में जाकर वेरीफाई करना होगा, क्योंकि इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, देयर आर मेनी डिस्क्लोजर्स, तो जब आप फाइनल करने जा रहे हो एक एक डिस्क्लोजर्स को, तो आई विल सजेस्ट कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे स्पेसिफिक फोकस किया जाए। राइट। रुबीना जी पूछ रहे हैं कि ये फाइनेंशियल्स बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है क्या? Right now, there is no software, नो but there सॉफ्टवेयर। is a specific Excel utility ICA has provided that I think more or less 80 and सफिशिएंट 90% है, they have. सफिशिएंट है। हाँ, that is sufficient, because उसमें कुछ presentation, कुछ disclosures change करने हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, but I think 70-80% that work has been done by ICA. मैडम, जल्दी आई थिंक कहीं ना कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ले आएगी फाइनेंशियल इसका भी, क्योंकि मोरलेस तो सेम ही है जैसा आकाश जी ने भी बोला। और हम लोगों हम्म। ने भी देखा कि जो कॉर्पोरेट बस, एंटिटी है उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है, कुछ आइटम तो उन्होंने शेयर कैपिटल की हाँ, जगह and this ओनर्स and this कैपिटल is कर दी। and this is only 1 year exercise। जब फर्स्ट ईयर राइट। में किसी एक क्लाइंट का अगर हमने फाइनेंशियल फाइनल कर स्टेटमेंट दिया उसके प्रिपेयर कर बाद फिर लिया है, वो। तो फिर उसके बाद में तो हर क्लाइंट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके दैट वी कैन यूज। वैसे एक आईसीआई की यूटिलिटी जो है काफी अच्छी है बनाई हुई। हाँ अपार्ट हाँ फ्रॉम दैट जो प्राइवेटली अगर हम देखें कंप्यूटेक्स वगैरह भी ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, मतलब उनके अलग मॉड्यूल्स होते हैं बैलेंस शीट वगैरह के, तो वहां भी ये फैसिलिटी है अ, राइट। उनके हाँ एज पर दिस गाइडेंस नोट। हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर अपनी अपनी फैसिलिटीज भी देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि भाई आईसीआई की एक्सेल यूटिलिटी को काम मिले तो यस, ज्यादा और वो बढ़िया है, बेस्ट rather है, than, मतलब फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट मिल रही है शायद, इसलिए उसको जल्दी हम लोग देख हाँ, भी रहे हैं। वो भी, और दैट इज बेस्ट। उसमें, और मेजर मेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसी को यूज करेंगे, तो उसको किसी से डिस्कस भी करना हो कि हाँ, किसी टॉपिक में क्या किया है, क्या प्रेजेंटेशन है, तो दैट विल बी इजी फॉर अस। एग्जैक्टली वो बेस्ट है वो। And next is, can you give the example of deferred tax in case of non-corporate entity? सर आप अगर बात करते हैं लाइक फिक्स असेट की बात करें, कोई असेट है, मैनेजमेंट के असेसमेंट के हिसाब से किसी असेट की लाइफ होनी चाहिए 10 साल, बट इनकम टैक्स में वो मेंशन करी हुई है लाइक 15% या जो 20% जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसके अगर अकॉर्डिंगली हम लाइफ कन्वर्ट करते हैं तो कुछ रिवर्स केसेस में आती है। तो डेफर्ड टैक्स की सिचुएशन अराइज होती है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन लाइक वैल्यू इन टैक्स बेस एंड वैल्यू इन अकाउंटिंग बेस। Accounting base. सो डेप हाँ, सो डेप्रिसिएशन अगर हमने जो फाइनेंशियल्स के अंदर लगाया है, दैट अमाउंट इज डिफरेंट, एंड डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स एक्ट में लगाया है वो अगर अमाउंट डिफरेंट है, दैट मीन्स आपकी डब्ल्यूडीवी दोनों केसेस में अलग अलग आएगी। जब डब्ल्यूडीवी अलग अलग आती है, तो इस सिचुएशंस के अंदर डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी डेफिनेटली विल अराइज, और वो लायबिलिटी और असेट जो भी होती है वो आपको रिपोर्ट करनी होगी। और सो आपको ऐसे ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, या मैं बोलूँ कि मैं प्रोविजन की बात करता हूँ, अगर AS15 का प्रोविजन मान लो अगर बनाया हो, या कोई XYZ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सिंपल सा, इनकम टैक्स में प्रोविजन अलाउ नहीं होता है जब तक कि आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर ना हो जाए।
अकाउंटिंग के अंदर वो अलाउ कर सकते हो। तो इस केसेस में भी आपको डेफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी अराइज होगी। तो ये एक एग्जांपल इस तरीके के हैं कि जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जिनके ऊपर हमें असेट या अभी लाइबिलिटी तक क्रिएट करनी इन चीजों पर हम लोग फोकस नहीं करते थे, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में है। डेप्रिसिएशन देखो, हम एज पर इनकम टैक्स ही लगा देते थे हाँ, दोनों को। शॉर्टकट तरीका लगाते हाँ, हैं वो बात अलग है कि इनकम टैक्स दैट, लगा रहे हैं, लेकिन हम कहीं पे लिख नहीं सकते। अब आइडियली अकाउंटिंग पॉलिसी में हमें लिखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन की क्या पॉलिसी फॉलो करिए। सी राइट। सो वी कांट मेंशन दैट डेप्रिसिएशन इज डन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हमें मेंशन करना होगा भाई डेप्रिसिएशन जो हमने एज पर मैनेजमेंट असेसमेंट लगाया है, वो बात अलग है कि ठीक है हमने सेम ही रखा है, दैट नो इशू। वन मोर एग्जांपल आशा जी एडेड, 43BH डिसअलाउंसेस केसेस। बिल्कुल सर, 43 भी 43 इनकम टैक्स के अंदर डिसलव हो जाएंगे। अरुण जी पूछ रहे हैं, डू वी नीड टू इशू ऑडिट रिपोर्ट इन ऑल केसेस? सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमसे साइन करवाया जा रहा है, बैलेंस शीट एंड पी एंड एल, तो डेफिनेटली वी नीड टू इश्यू ऑडिट रिपोर्ट। तो इट हम इसको मीन्स कि इग्नोर अगर हम, करते हैं बिकॉज, राइट। हाँ, हाँ, हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि देखो कंपनीज एक्ट के अंदर जब आरओसी में सबमिट होती है तो आरओसी उसकी इंक्वायरी करते हैं, चेक करते हैं, इसलिए वहाँ ऑडिट रिपोर्ट सब बनाते हैं। बट नॉर्मली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के एज सच कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो चेक करती है, तो उस केसेस में हम इग्नोर करते हैं। बट हमें एक 2 पेजर की जो एक फॉर्मेट जो आईसीआई ने ऑलरेडी दे ही रखा है, जिसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं, तो वो फॉर्मेट हमें एक रिपोर्ट इशू करनी चाहिए अगर हम बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं तो। डेफिनेटली ज्ञान जी, ये बिल्कुल आईसीए का क्लियर व्यू है कि अगर हम एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ वी आर हाँ, साइनिंग द बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स, देन वी नीड टू इशू आवर ऑडिट ओपिनियन सेपरेटली, डेफिनेट। not just sign or stamp. It means, and the next career is there. If there is a loan from related parties, where it will be shown? लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज आपको शो करना पड़ेगा बोरोविंग के अंदर, बिकॉज दिस इज लाइक सिंपल बोरोविंग लाइक वी आर टेकिंग फ्रॉम बैंक एंड एनी अदर पार्टी। सो लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी भी वहां शो होगा। इसके अंदर फुटनोट में जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी में अगर हमने ये देखा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी इसको एडिशनली डिस्क्लोजर में कवर करना है यहाँ पे डालने के अलावा। और उसमें जो भी इंटरेस्ट का प्रोविजन जनरली हम जैसे इग्नोर कर देते हैं, तो अगर कोई आपस में एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है कि हमें एक इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी है, तो वो भी हमें डिस्क्लोज करनी होगी। राइट। सर एक बहुत तो बड़ा बोरोविंग के सवाल। अंदर, जी जी। हाँ, बोरोविंग में डिस्क्लोजर जाएगा इसका, बोरोइंग सच में ऐसा जाएगा कुछ डिस्क्लोजर, राइट। सर one of the big question, there are so नहीं। many client which is having turnover less than 2-3 crore. This new format would be a burden on CA, as client won't able to do anything in this case. Fees is not going to increase. So what we have to do, and preparation of the financial statement is also duty of the entity, not by auditor. देखिए, So देखिए सर, your इस remark. केस में है ना, सिंपल सा एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, ये अपनी फीस जो है वो टर्नओवर से डिसाइड नहीं होती है जनरली, मतलब मेरा ये मानना होता है। फीस डिसाइड होती है कि उस एंटिटी में कितने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स है, उसमें कितने रिक्वायरमेंट या कितने डिस्क्लोजर्स हैं। सो अगर वहाँ पे काफी कुछ ट्रांजेक्शन है, लाइक मैं कहूँ बोरोविंग भी है, वहाँ पे हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्वेंट्री के ट्रांजेक्शन भी है। हम ये कहते हैं कि 50 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो AS 15 भी अप्लीकेबल हो रहा है। तो अगर ये सब रिक्वायरमेंट है तो हमें वो तो क्लाइंट के साथ उन्हें समझाना पड़ेगा कि दीज टाइप ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट वी नीड टू टेक केयर। भले ही बात अलग है कि हम उनको फाइनेंशियल बनाने में भी असिस्टेंस कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, लेकिन वो हमें उनको बताना पड़ेगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर करनी होती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमें कमेंट करना होता है कि वी एंश्योर दैट ऑल दीज टाइप ऑफ कंप्लायंसेस हैव बीन डन। तो अब उसके अकॉर्डिंगली हमें फीस डिसाइड करनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई वो छोटा ट्रांजेक्शन है तो भाई हम इसका फॉर्मेट अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। आप फॉर्मेट में जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है वो डेफिनेटली आप इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट में भी आपको जो मॉडिफिकेशन करना है यू कैन डू, बट यू नीड टू टेक केयर दैट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सारी कंप्लायंसेस उसमें हो रही हो। वहां पे कोई चॉइस नहीं है, जो भी अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फॉलो करने पड़ेंगे। Absolutely correct. रूबी जी का एक क्वेश्चन है, इफ परक्विजिट्स आर बीइंग गिवन टू द पार्टनर्स, वेयर इट विल बी सोन? रेमुनरेशन के अंदर जाएंगे सर। रेमुनेशन के अंदर में। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट हो गए वो। रेमुनरेशन जब भी हम पार्टनर्स रेमुनरेशन की लाइन आइटम दिखा दे तो उसी के अंदर शो होगा। उसमें ये देख हाँ। लेना है कि उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से हमें करनी है। जो इनकम टैक्स के जो क्लोज होता है कि जो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन होती है, तो ITR में क्या दिखाओगे वो एक सेपरेट मैटर है। हम्म। सर ये चैरिटेबल ट्रस्ट पर भी एप्लीकेबल है? देखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट के केसेस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है, जो भी ये फॉर्मेट वगैरह दिया है वो हमारा कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज अगर अपन कर रहे हैं
तो उस केसेस के ऊपर ये बात करते हैं। चैरिटेबल के ऊपर इसमें स्पेसिफिक कोई भी कहीं पे गाइडेंस मेंशन नहीं है कि हम बोले कि वो ये फॉर्मेट फॉलो करे या जो भी है। ओके। आईपी अरोरा जी पूछ रहे हैं वेदर प्रीवियस ईयर नंबर्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। आई थिंक यस। क्या क्या सर? प्रीवियस ईयर नंबर्स यस, इट इज मैंडेटरी। इट इज ये देने मैंडेटरी। पड़ेंगे सर, यस। क्योंकि हाँ, इसमें जो ट्रू एंड फेयर व्यू की एक रिक्वायरमेंट है कि कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल होना तो चाहिए। कंपेरेबल के लिए वो तभी बोल पाओगे आप जब आप प्रीवियस ईयर की फिगर, इवन नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर देना मैंडेटरी है। हाँ, नोट्स में भी कंपेरेटिव देना होगा, हमारे एस हाँ, ए नोट्स में 710 की भी रिक्वायरमेंट है। वी नीड बिल्कुल। टू इंश्योर। हाँ हाँ। And Siddharth Patni ji, is there these provisions are also applicable to compilation reports as per S SRE 4410 compilation engagement. देखिए, फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेट तो वैसे भी हमारे लिए एक ऑप्शनल है, हम ये इंश्योर करने के लिए तो सजेस्टिव हमारे लिए बनाया गया है। आप कंपाइलेशन जो कर रहे हो, जो भी असाइनमेंट आपके पास है, तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू टेक केयर कि हमें क्या क्या डिस्क्लोजर जाने हैं। कंपाइलेशन असाइनमेंट जब भी होते हैं वो 1-to-1 एक्टिविटी बेस होती है, लाइक उसमें स्कोप क्लियरली डिफाइंड होता है कि हम क्या एक्टिविटीज कवर करने जा रहे हैं और किस रेगुलेटरी अथॉरिटी या किस परव्यू से हम ये काम कर रहे हैं। तो जो रिक्वायरमेंट आप देना चाह रहे हो उसी पे एप्लीकेबल हो गए, वहां कौन सी रिपोर्ट आप इश्यू करते हो। नॉर्मल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, देन ऐसे 700 गवर्न करता है। वहां फाइनेंशियल्स बोलता है ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, इसलिए ये सारी इतनी जो रिक्वायरमेंट या डिस्क्लोजर्स हमने डिस्कस करी। कंपाइलेशन में आप जाते हो, वहां पे आपका काम होता है कुछ इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके एक सर्टेन फॉर्म में बनाना। वहां पे हमें कोई सर्टिफिकेशन, हमें कोई ओपिनियन अगर कुछ इश्यू नहीं करनी होती है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट की जो MIS या जो रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली आप बना के दे सकते हो। और अगर स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइंड है कि फेयर रिपोर्टिंग पर्पज से आपको हाँ करना अगर है, इस देन इट इज हाँ हाँ, देन एप्लीकेबल। उस केस में फिर अगर फेयर व्यू है तो उस हम्म। देन डेफिनेटली हमें फिर वही जाना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से AS या डिस्क्लोजर सब है या नहीं है। किसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। हाँ जी। अमित जी पूछ रहे हैं इफ वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड साइन इट देन हाउ वी कैन गिव द रिपोर्ट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंसी। अमित जी का बहुत ऑलरेडी डिस्कस हुआ था कि बैलेंस शीट पर सिंपल हम साइन नहीं कर सकते। यही उनका क्वेश्चन है कि हम सिंपल बैलेंस शीट पर साइन कर रहे हैं देखो डेफिनेटली। सर, क्या होता है कि आइडियली तो ये बात अलग होती है कि बनाना है करना, लेकिन ऑफिशियली देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। राइट। कि बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है कि हम असिस्टेंस करते हैं और सबको पता है कि भाई हम क्लाइंट को गाइड करते हैं, यहाँ पे ये फिगर करनी है, जो करनी है XYZ। लेकिन हमारा काम ऑडिट करने का है, तो इन केस ऑफ ऑडिट वी नीड टू गिव ओपिनियन और हमें एक रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है। कोई भी फाइनेंशियल्स या किसी भी एश्योरेंस पे वी नीड टू गिव ए ऑडिट ओपिनियन। हाँ हाँ, अगर हमसे करवाया जा रहा है, लाइक अगर मैनेजमेंट हमें बोलते हैं कि MIS बना के देनी है। अब MIS का फॉर्मेट क्या होगा, वो जो जो हमारे स्टैंडर्ड बैलेंस शीट एंड P&L का फॉर्मेट है, देके इनसे कि लाइक इसी फॉर्मेट में आप बना दीजिए, कोई इशू नहीं है, तब आप बना के दीजिए, आपको कोई ओपिनियन देनी नहीं है उस केस में। राइट। वो उनका इंटरनल मैटर है। One question related to private limited company. CC limit rupee 1 crore waived off by the bank. Interest portion will be taxable in the income tax. What about the principal portion tax treatment in income tax? सर, प्रिंसिपल वाले के केसेस में आपको देखना पड़ेगा ये कैपिटल लाइबिलिटी है या किस तरीके से है, तो वो आपका इनकम टैक्स आई थिंक शायद कुछ डिसअलाउंस वगैरह या कुछ अलग रखता है, उसका मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स के एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट वो इनकम टैक्स में करेंगे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी लगेगा। हाँ, सोसाइटीज के ऊपर ही हमारा जो डिस्क्लोजर है और ये जो है वो जी जी। अप्लीकेबल है। सर का जी व्हाट अबाउट द RWA दे आल्सो नॉट मींट फॉर डेफिनेटली RWA कमर्शियल। के ऊपर भी यही फॉर्मेट अप्लीकेबल होगा, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा RWA का। नहीं बट इनका क्वेश्चन है स्पेसिफिक। दे आर ऑल्सो नॉट मींट फॉर कॉमर्शियल। जैसा कि अभी आपने ट्रस्ट के केस में बताया था कि दे आर फॉर द हम्म। पर्पज ऑफ कॉमर्शियल नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पज। ट्रस्ट के लिए भी आपने बताया था ना। लाइक वाइज हाँ, इज आस्किंग कि नहीं RW में। उसमें देखो कॉमर्शियल नहीं, आपके आएगा कॉमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटी। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाते हैं ना फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग, तो वहां पे कुछ लाइन लिखी हुई है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, 2-3 वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, कॉमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो हो जाते हैं। हम्म, और जब AS वगैरह फॉलो हो जाते हैं तो हमें रिपोर्ट देनी होती है, तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देनी होती है कि भाई उसमें जो भी कंप्लायंस है वो हमने इंश्योर करी है। ओके। तो उस अकॉर्डिंगली चलते हैं, क्योंकि RWA के केस में आप बोलोगे कॉमर्शियल नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज तो उनकी वैसे हो ही रही है, वो ट्रांजेक्शन जो करते हैं ना अपना जो भी। will we also give an opinion on the figures of the previous year? I think no.
प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स ईयर के ऊपर हमें कमेंट करने की कोई कमेंट रिक्वायरमेंट करने नहीं की होती जरूरत है। नहीं है। हाँ, अगर ये होता है जनरली, देखो बिग फोर का एक ट्रेंड जो मैंने देखा है, या जो भी, जब कभी भी ऑडिट चेंज होती है, लाइक लास्ट ईयर ऑडिटर कुछ और था और करंट ईयर में ऑडिटर है, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ, जनरली हम अदर मैटर पैराग्राफ डालते हैं, वहां पे हम मेंशन करते हैं कि प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव फिगर जो भी है वो लास्ट ईयर प्रीवियस ऑडिटर ने डेटेड इस रिपोर्ट जो भी है वहां से उन्होंने चेक करी है, हमने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किए। हालांकि ओपनिंग बैलेंस चेक करने की अपनी ड्यूटी होती है, लेकिन ऑडिट करने की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो एक नोट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही डाला जाता है। अदर मैटर पैराग्राफ में वी कैन इनकॉर्पोरेट हाँ। दैट। हाँ, अदर मैटर पैराग्राफ में वी नीड टू अगर इनकॉर्पोरेट लास्ट कि, ईयर का हम नहीं किया तो कोई इशू ही नहीं है। हाँ तब कोई इश्यू नहीं है, तब अगर तो हमने करा ही सेपरेट है। ऑडिटर थे देन वी कैन राइट कि दीज फिगर्स नंबर्स हैव Yeah. बीन ऑडिटेड बाय सो एंड सो फर्म। हाँ डेफिनेटली। सो विद दिस अरोड़ा जी, थैंक यू। अरोड़ा जी करनाल से हैं, उन्होंने स्पेशल थैंक्स भेजा है। ज्ञान जी, थैंक्स फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक थैंक और थैंक यू टू ऑल। थैंक्स टू all members who have participated. So anything else, ज्ञान भाई? नहीं, बस आज का तो टॉपिक यही, बाकी किसी को अगर कोई भी क्वेरी हो, डिस्कशन हो, तो सुमित सर बिल्कुल। से मेरा एक बार नंबर वगैरह लेके कभी भी श्योर। हम फोन एंड कॉल्स ये वगैरह कर सकते हैं, एनी टाइम प्रेजेंटेशन एंड अवेलेबल। फॉर्मेट एक बार ज्ञान जी मुझे फॉर्मेट और शेयर कर दीजिएगा, सो डेट हैंडी हो जाएगा हाँ लोगों के लिए, जो अभी आपने श्योर, मैं दिखाई दे आपको रहा हूँ। शेयर कर, हाँ एंड आशा जी, मैं डेफिनेटली। रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मल व्यूटे के लिए। अंकुर जी, थैंक यू फॉर मेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। अंकुर, थैंक यू आकाश जी, सभी का धन्यवाद। नाउ आशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू ऑल कि आज आप सभी एक एक गुड इंटरेक्टिव डिस्कशन के लिए एज ए टीम मेंबर हम सभी साथ में हैं, और स्पेशल थैंक्स टू सुमित जी आपका कि जो इस तरीके की थोड़ी एक इंटरेक्टिव वेबिनार हो, जो भी एक नॉलेजेबल होती है, तो वो टाइम टू टाइम आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो थैंक मेंबर्स में एक अवेयरनेस बनी रहती है इस यू। रिगार्डिंग। ओवर टू यू आशा। Thank you, Sumit for this opportunity and responsibility for this formal vote of thanks. तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हमारे लर्नेड स्पीकर आज के ज्ञान शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम कासा को दिया एंड बहुत ही अच्छी तरह से आपने डिलीवरेट किया इस टॉपिक पे। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी आप लोगों ने इंटरेक्टिव बनाया, आपने क्वेश्चंस पूछे और हमारे स्पीकर जी ने उनके सबके जवाब दिए। तो बिकॉज इंटरेक्शन से ही एक अच्छी वेबिनार निकल के आती है पूरी की पूरी। देखो, तो लर्निंग हमने लर्निंग देख उसी से होती है, जब भी जी, इंटरेक्टिव होता है ना, तो लर्निंग उसी से होती है, अदरवाइज तो नोट्स या जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह हम सारे के सारे रीड आउट कर ही यस, वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है नहीं तो। और हमने देखा हमारे हाँ ऑलमोस्ट फुल वेबिनार में 100 पार्टिसिपेंट्स पूरे कंप्लीट थे। यूट्यूब पे अलग लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, वहां भी अप्रोक्सीमेटली 50-70 हमारे व्यूज चल रहे थे। तो विद दिस, थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे से आप लोगों ने इस पे पूरा पार्टिसिपेट किया, हमारे स्पीकर ने इस पे डेलीब्रेट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कासा प्लेटफॉर्म, सुमित जी का थैंक्स कि वो हमेशा कुछ ना कुछ एक अच्छे टॉपिक पे और इतने टाइम टू टाइम, जो टाइम की जरूरत, जिस टाइम पे जिस टॉपिक की जरूरत होती है उसे लेकर के आते हैं और एक अच्छी वेबिनार कंडक्ट करवाते हैं। एंड वी होप कि ये कंटिन्यू रहेगा आप सबके साथ से। तो थैंक्स ईच वन ऑफ यू एंड टू द कासा प्लेटफॉर्म फाउंडर सुमित गर्ग जी ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी, थैंक यू ज्ञान भाई, थैंक यू अंकुर थैंक यू अंकुर ऑल, जी, हैव ए गुड डे। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू। ज्यादा सुविधा बढ़ेगी, बाकी कोई दिक्कत होगी ये इस